हाय एंड वेलकम टू एचएस कम्युनिटी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड, जी हाँ, अनुपमा का बहुत अच्छा था। मजा आया एपिसोड देख के, क्योंकि मान हमें भर भर के देखने को मिले। बहुत अच्छे अच्छे सीन्स थे और आद्या और अनुपमा का सीन भी बहुत अच्छा गया। वनराज की भी थोड़ी सी हवा टाइट की है आज बापू जी ने, बट वनराज तो कहाँ ठीक होगा, वो तो बाद की बात है। बट अच्छा लगा जो बापू जी ने किया। तो बहुत बढ़िया रिव्यूज आए हैं आपके, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं एबिगल के वीडियो से। नमस्ते अंजू जी और नमस्ते टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप सब कैसे हो? और सबको धन्यवाद मेरा वीडियोस और रिव्यूज पसंद करने के लिए और हमेशा मुझे मोटिवेट करने के लिए। अंजू मैम, धन्यवाद आपके फीडबैक के लिए और मेरी हेल्थ पूछने के लिए मैं डॉक्टर के पास गई थी। उसने मुझे स्टेरॉइड दिया, थोड़ी ठीक हो। और मैं इसलिए रिव्यूज भेजती हूँ क्योंकि मुझे अनुपमा शो बहुत पसंद है। Today's episode started with Anupama and Anuj in the kitchen, and Anupama was saying, "I'm glad I have a second chance after failing twice. I know I got this opportunity to be happy, and so Anuj will think that Anupama is thinking about failing twice in marriage, and he's thinking that she's talking about Deepu, that she's got a second chance with Deepu, and he is like, yeah, I saw Deepu, his respect for you, love for you, and then she'll get upset on and she'll say, keep quiet, what are you saying? I'm not talking about Deepu here, I'm talking about the wild card entry competition. I've got an entry with the wild card, and this is a beautiful opportunity for me. And then he'll say, yes, you deserve it. So he'll get happy. That moment was very sweet, and he'll say, you deserve it, you'll win. So he'll say, he'll give her the sweet to eat, and she will give him. They'll be happy. And then it goes to also Vanraj, the children and Ansha playing. Ansha will break their dolls, and Vanraj starts his game plan now, that he's trying to show Ansh that nobody can shout and say anything to him. He is trying to manipulate Ansh with love, that nobody can say anything to him. And then Babuji understands that. Babuji comes and talks to him, Vanraj, because he will tell Vanraj will be telling Ansh that nobody can do anything to you. So Babuji will also come and talk to Vanraj, and then Kavya will also come and say that I'm also a stepmom, but have I ever behaved badly with your children? But not all people are like you, Vanraj. So Vanraj will say that if Tito becomes a father, then only, right, he can shout at Ansh. So yeah, he has his plans up. And then back there with Anupama, she will bring some milk and medicines for Shruti, and Shruti will drink it, and Anuj will give. Anupama's feeling awkward over there. She's also getting jealous, so she'll leave the room, and then she will cook some nice food, Anupama, and then Adya is there in the kitchen too. She will tell Adya to sit and drink water, and Adya will listen. So Anupama, has prepared some nice, yummy food, and she'll put it and she'll say, I've cooked so much of food, who's going to eat all this? Purposely she'll say this because she wants Adya to eat the food. And then she leaves and she'll say, I'm going to go check on Shruti. And then Adya will look at the food, she'll get tempted and she'll start eating. Anupama will be watching from behind. She'll feel so happy and she'll say, at least,
I can feed my daughter, fill her stomach, but I can't fill her heart. When is the day I will feed her with my hand? Poor Anupama, she's still, thinking of her child. And then she's, Anupama is trying to learn the vegetables in English, and she's not able to learn them. Anuj is passing through her room, and Anuj overhears her. That scene is very cute. He'll be teaching her all the names of the vegetables in English, and then he will say to learn it as a poem or as a riddle, and he'll be laughing. So because they are laughing, Shruti starts getting jealous. So now you can see slowly by slowly Shruti's possessiveness. So Shruti is, it's not possessiveness. I have noticed closely Shruti and Adya's habits. They both do the same thing. So I've thought a lot about what Adya does and says. It's all Shruti's training. So I'm pretty sure that Shruti has only trained Adya. The way she speaks, the way she does things is the same as what Shruti does. That is my opinion. So Shruti is actually like a psycho. She's really crazy. She's a crazy woman. And she's getting so jealous because Anupama and Anuj are laughing. And the nurse comes and, helps her out with her injection, and she will ask what's happening. The nurse will say that Anuj and Anupama are, discussing something. And because she will hear them laughing more, in jealousy, she'll throw down the medicine box, and Shruti and Anuj and Anupama will come running thinking something happened. Yeah, so when Anuj and Anupama come running, she'll be looking dumb, like what to say. She's thinking what to say, so suddenly she'll remember that Anupama lifted her and everything. So she'll say, oh, I'm sorry, my leg hit the medicine box and it fell by accident. And she'll hold Anuj's hand and say, oh, I had a bad dream that you are leaving me. Again she's playing all these tricks. And Anuj is like dumbstruck looking at her. So Anuj, slowly by slowly you'll come to know what Shruti is. So Anupama will understand, and Anupama will start picking up the, syringes and everything, and Anuj will say, please don't do that. She'll say, no, let me do it. It's because it'll, someone's feet might get hurt and it cut. So she will pick it up, and then she goes out. She hands it over to the nurse, and the nurse says, she'll tell the nurse that please don't keep things near Shruti where, it can fall and hurt people and hurt her. And then the nurse will say, no, I remember I kept it in the side table of the bed. And so Anupama now will try to find out really what's the reason. So that scene indicated that Anupama is going to go deeply now and find out what's, wrong actually with Shruti. What's her plans? और सबके कमेंट्स और आपके फीडबैक और वीडियोस सुन के मुझे भी याद आया कि जब अनुपमा ट्रॉमा में थी 5 years ago, उसने सब बंद किया, और जब उसको शूट हुआ श्रुति, तब भी उसको पैनिक अटैक आया. वो सच्ची में ट्रॉमा और पैनिक अटैक इसलिए क्योंकि मैं भी अभी पैनिक अटैक्स और ट्रॉमा से निकली. मुझे भी ट्रॉमा हुआ और मेरे बच्चे और मेरी फ्रेंड मुझे संभाला. चर्च में भी मैं किसी से बात नहीं करती थी. मेरे हस्बैंड को लगा कि मुझे पोजेस हो गई. सो मैं खुद ही अपने आप ट्रॉमा से निकली क्योंकि मुझे छोटे बच्चे हैं और मैं यहाँ अकेली हूँ और मेरे बच्चों को मुझे देखना है. तो आद्या का पैनिक अटैक और ट्रॉमा डायरेक्टर्स गलत दिखा रहे हैं. Yeah, so when Anupama actually picks up everything, she'll tell Anupama, close the door and go. Purposely she'll tell Anupama. Anupama understands very well that she's getting jealous,
and Anuj is also just wondering what happened. So then Anupama will go quietly inside Adya's bedroom and tuck her in, and she will be thinking of her daughter Adya. And then it goes to the precap, the same precap where Dia is telling Anupama about Anuj's love and what it will be if he marries Shruti with a one-sided love. And then Adya tears the book. So looking at that scene where Adya is tearing Anupama's recipe book, is the same behavior as Shruti is behaving. She threw down her medicine box because she was jealous. So both of them have similar tendencies, which indicates that this is all Shruti's training to Adya. So she's holding Adya back so much that she can manipulate Anuj very nicely, because she knows Adya is Anuj's weakness. And if she has Adya in her hand, she has Anuj also in her hand. So that was my observation. Thank you, Anju ma'am, for your feedback. Thank you all. Love you all. Good night. थैंक यू सो मच एबी। और अच्छा लगा आपने बताया कि आप अब ठीक हैं और आपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले लिया है, तो बहुत बढ़िया है। और आप अनुपमा शो को बहुत पसंद करती हैं, ये जान के तो और भी ज्यादा अच्छा लगा कि अब आपको कोई नहीं रोक सकता अनुपमा का रिव्यू करने के लिए। आपकी हेल्थ आप जल्दी से ठीक कर लेंगी। और बहुत बढ़िया आपने रिव्यू दिया है। और आपने कहा है कि श्रुति की ट्रेनिंग है आध्या, तो ट्रेनिंग तो खैर कुछ ना कुछ तो है जो अभी क्लियर नहीं है, बट डेफिनेटली क्लियर होगा। बट श्रुति की कंपनी में आद्या बहुत बदतमीज हुई है, ये एविडेंट है। और आपने अपने ट्रॉमा के बारे में भी शेयर किया है, और इसको मैं एक ही लाइन में कहूंगी कि आपका मदर वाला जो अंदर एक होता है ना, मदर की एक ताकत होती है, उसने आपको इस ट्रॉमा में से निकाला है, और यही अनुपमा दिखाती है। तो बहुत बढ़िया रिव्यू था, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, और मेरी सभी सहेलियों को भी नमस्ते। मैं रेखा सक्सेना बोल रही हूँ। आज का एपिसोड अच्छा था। अनुज और अनुपमा बातें कर रहे हैं, जिसमें अनुपमा अपनी खुशी शेयर कर रही है। आज अनुपमा बहुत खुश है, उसको सुपरस्टार शेफ में तीसरा मौका जो मिल गया है। लेकिन हमारे अनुज कपाड़िया जी अपने दिल के हाथों मजबूर होकर इस बात को, अनुपमा की इस खुशी को यशदीप से जोड़कर देख रहे हैं कि तीसरा मौका बनराज अनुज के बाद यशदीप होगा, जो अनुपमा की ज़िंदगी में आ रहा है। लेकिन अनुपमा इस बात पर विराम लगा देती है। अनुपमा कहती है कि वो सुपरस्टार शेफ के बारे में बातें कर रहे हैं। यशदीप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बस हमारे कपाड़िया जी खुश, और उन्होंने चैन की सांस ली और खुशी में अनुपमा को हलवा खिलाया। अनुपमा ने भी अनुज को हलवा खिलाया। अनुज के चेहरे का रंग जो उतर गया था, वो खुशी का रंग वापस आ गया। दोनों को बातें करते देख, हंसते हुए देख और खुलकर हंसते हुए देखकर अच्छा लगा। अनुपमा को सुपरस्टार शेफ में फोकस करने के लिए कहता है अनुज। वहाँ इंडिया में वही जो पहले होता था, अंश की शैतानी सबको दिख रही है, लेकिन बनराज को नहीं, क्योंकि बनराज अंश को फिर दूसरा तोशु बनाने के काम में लग गया है। जो अंश बनराज के कब्जे से बाहर आके सुधर रहा था, वो फिर बनराज का तोशु नंबर 2 बनने के लिए तैयार हो रहा है। बनराज कहता है कि तुम्हें जो मर्जी आए करो, और अगर तुम्हारा पापा पिटाई करे तो मैं उसकी पिटाई कर दूंगा, गलत बात है। लेकिन तभी बाबूजी आके बनराज को कहते हैं, चाहे बच्चे गलती करें चाहे बड़े गलती करें, सज़ा तो हर एक को मिलनी चाहिए। डिम्पी और टीटू को भी अधिकार है। लेकिन बनराज कहता है कि वो हाथ लगा के दिखाए, वो सौतेला बाप है। काव्या भी कहती है कि हर सौतेला बाप तुम्हारी तरह नहीं होता। सही कहा काव्या ने। काव्या अगर सौतेली माँ बनती तो आज वो शाह परिवार में इस तरह से नहीं रह रही होती। बाबूजी का कहना कि बच्चे पे पहला अधिकार बाप का होता है, पिता के होते हुए दादा को पीछे हटना होगा। मैंने भी ये छोड़ा था। अरे बाबूजी, किसको समझा रहे हो? उस बैल बुद्धि बनराज को, जिसको अपने स्वार्थ, अपनी खुदगर्जी के आगे अपना पोता भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। अभी भी अपने बेटे को नहीं पहचान पाए क्या?
उधर अनुपमा ने खाना रेडी कर लिया है। तभी आद्या पानी पीने आती है तो अनुपमा बहुत आराम से कहती है कि बैठकर पानी पियो, नहीं तो पेट, गॉल ब्लैडर और घुटने का नुकसान होता है और गिलास से पानी पीना चाहिए। वैसे ये बात अनुपमा ने मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिल्कुल सही कही, लेकिन सरप्राइजिंगली आद्या बैठती है और पानी पीती है। अनुपमा कहती है कि मैं खाना श्रुति को देकर आती हूँ, फिर देखती हूँ खाने का क्या करना है। यानी आद्या को अनुपमा ये बता रही है कि मैं श्रुति के लिए आई हूँ, उसके लिए खाना बना रही हूँ। अनुपमा जाती है तो आद्या भी खाने की तरफ अट्रैक्ट होती है, क्योंकि उसको भी पता है कि अनुपमा कितना अच्छा खाना बनाती है। वो खाना खाती है और अनुपमा खुश होती है उसको देखकर। कहते हैं ना कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। आज पहला कदम पड़ा है, माँ बेटी का पास आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। अनुपमा इधर दवाई लेके श्रुति को देने जाती है तो अनुज को देखकर जाने लगती है। बहुत मुश्किल है अनुपमा के लिए ये सब देखना। अनुपमा सब्जियों के नाम इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करती है तो अनुज वहाँ पहुँचकर अनुपमा की हेल्प करता है। दोनों बहुत खुश होकर बातें कर रहे हैं। बहुत क्यूट, बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। अनुपमा को सब्जियों का पोस्टमार्टम करना और अनुज का उस नाम को करेक्ट करना। दोनों हंस रहे हैं और ये आवाज़ें श्रुति के कानों में पहुंच रही हैं। श्रुति ने हंसी की आवाज़ सुन ली और उसने गुस्से में मेडिकल बॉक्स गिरा दिया। दोनों भागकर वहाँ पहुँचते हैं। श्रुति का जीलियस होने का सिलसिला शुरू हो गया। अब श्रुति का असली रंग दिखेगा। श्रुति कहती है कि मैंने बुरा सपना देखा तो अनुपमा कहती कि नींद में सपने सच नहीं होते। अनुपमा मेडिकल बॉक्स उठाकर बाहर जाती है तो श्रुति दरवाज़ा बंद करने के लिए कहती है और फिर वहीं श्रुति का वही पुराना टेप शुरू हो जाता है कि शादी की डेट निकलवा लो, मैं सिक्योर नहीं रहूँगी, और अनुज का हाथ कसकर पकड़ती है। सच में अगर इसका बस चले तो लेटे लेटे ही शादी कर ले। अनुज क्या करे, वो तो खुद दिल के हाथों मजबूर है। और ये बात श्रुति जानती है कि अनुज अनुपमा से प्यार करता है, इसलिए वो इनसिक्योर है, इसलिए उसको भी शादी की जल्दी है। किसी तरह से अनुज ने श्रुति को शांत किया। अनुपमा आद्या के कमरे में आती है और ठीक से माँ का प्यार यानी चादर उड़ाती है। आगे प्रीकैप वहीं। अब दिया के कहने का क्या असर होता है अनुपमा पर, बस ये देखना बाकी है। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच रेखा जी। एक एक सीन आपने बिल्कुल एपिसोड की तरह बुनकर रख दिया है अपने रिव्यू में। और सही कहा आपने कि खुदगर्जी के आगे अपना पोता भी नहीं दिख रहा, सिर्फ वो पाना पाना पाना। वही मैंने सुबह अपने वीडियो में भी कहा था, अगर श्रुति की अनुज को पाने की जिद है तो इधर वनराज की अंश को पाने की जिद है, जिसके आगे उसी इंसान की खुशियों को आग लगा देते हैं जिसको वो प्यार करते हैं। अंश तो छोटा बच्चा है, उसके साथ अगर वनराज आज ऐसा कर रहा है तो कल को अंश तो तोशु से भी बिगड़ा हुआ निकलेगा। तो ये थोड़ा सा है जो कंसर्न जो आपने टच किया है, तो थैंक यू सो मच आपका। तो आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत बहुत अच्छा लगा। आज दोनों का बातें करना बहुत ही बढ़िया था। अनुज ने गलत समझ लिया कि अनुपमा दीपू जी के बारे में बात कर रही है, उसका चेहरा देखने वाला था आज, बट अनुपमा ने अनुज की गलत फहमी दूर कर दी और वो भी अनुज को हक से डांट के कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर तो अनुज की खुशी देखने वाली थी। आज दोनों का एक दूसरे को केक खिलाना अच्छा लगा। आज आद्या का सीन अपनी माँ के साथ देखा, बहुत बढ़िया था। आज कितने प्यार से उसने अपनी माँ की बात सुनी और बाद में उसके हाथ का बना हुआ खाना भी खाया। ऐसे ही धीरे धीरे अनुपमा अपने प्यार से अपनी छोटी का प्यार भी जीतेगी। टाइम तो लगेगा। अनुपमा जब श्रुति के कमरे में दवाई और दूध लेकर गई तो अनुज को श्रुति के साथ बैठकर उसे अच्छा नहीं लगा, बट वो वहाँ से चली जाती है। बाद में जब अनुपमा अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रही होती है तो उसे इंग्लिश के वर्ड समझ में नहीं आ रहे होते, तो अनुज आकर अनुपमा की हेल्प करता है।
तो दोनों सब्जियों के नाम पर इतना खुश होते हैं। आज इतने दिनों बाद दोनों को खुश देखा तो सच में दिल खुश हो गया। बट ये खुशी 2 पल की ही मेहमान थी। उधर श्रुति से बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये दोनों हंस हंस कर बात कर रहे हैं और जानबूझकर उसने बॉक्स फेंक दिया अनुज मेरे पास आ जाए, अनुपमा को छोड़कर। बाद में दोनों का आना और अनुपमा के सामने जानबूझकर अनुज का हाथ पकड़ना और झूठ बोलना कि मुझे नींद में सपना आ गया था। अनुपमा को बहुत हर्ट हुआ जब उसने जानबूझकर अनुपमा के सामने अनुज का हाथ पकड़ा। फिर वो सामान उठाने लगती है तो अनुज को फिक्र होती है कि ये तुम्हारा काम नहीं है, कहीं तुम्हारे हाथ पे ना लग जाए। उधर भी श्रुति अनुज का हाथ नहीं छोड़ती कि कहीं अनुज उठकर अनुपमा के पास ना चला जाए। बट नर्स से बात करके पता चलता है कि उसने बॉक्स साइड पर रखा था और अनुपमा समझ जाती है कि श्रुति झूठ बोल रही है। ये श्रुति जितनी कोशिश करेगी अनुज को अनुपमा से दूर करने की, ये दोनों उतने ही करीब आते जाएंगे। और जब अनुपमा धीरे धीरे इस श्रुति की चालें समझेगी और इसका जवाब भी बहुत अच्छे से देगी, बहुत अच्छे से समझाएगी कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ रहने से अनुज मेरे पास आ जाएंगे, जब आपको ऐसा लगता था तो आपने अनुज को क्यों हाँ कहा कि अनुपमा को लेकर आ जाओ। अगर आप सच में अनुज से प्यार करती हैं तो अपने प्यार पर विश्वास रखो। बट अब इसकी हरकतों का पता अनुज को भी चलना चाहिए, क्योंकि अनुपमा कभी भी नहीं बताएगी अनुज को। इसलिए मैंने कहा कि अनुज को भी पता चले कि ये क्या करती है। जैसे 2 दिन रह गए हैं कंपटीशन में, तो शायद बाद में ये कहानी हमें इंडिया में ही नज़र आए। कुछ टाइम तो लगेगा। आज वनराज का अंश को लेकर सब पर चिल्लाना बहुत बुरा लगा। बापूजी ने बहुत अच्छे से समझाया वनराज को, बट ये वनराज किसी की नहीं सुनने वाला। ये अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। काव्या ने भी बहुत अच्छे से जवाब दिया वनराज को, बट कोई फ़ायदा नहीं। प्री कैम में फिर से कल वाला ही दिखा रहे थे। अनुपमा समझेगी दिया की बातें, जो भी दिया अनुपमा को कह रही है, और अनुपमा अनुज को भी समझाएगी और आप भी समझेगी। और रही बात श्रुति की, जैसे जैसे वो अनुज को पाने के लिए अनुपमा के सामने ऐसी वैसी हरकतें करेगी तो अनुपमा समझ जाएगी कि ये प्यार नहीं पागलपन है, जो सिर्फ अनुज को पाना चाहती है कि अनुज बस मेरे पास ही रहे। जैसे माया करती थी वैसा ही अब श्रुति भी वो हरकतें करने पर उतर आएगी। आगे देखते हैं मैम कहानी में क्या होता है। बस थैंक यू, आज इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच कुसुम, आपके इतने प्यारे ऑडियो के लिए। और आज आपकी आवाज में खुशी दिख रही है क्योंकि आपको मान के सीन दिखे हैं भर भर के। और सही कहा आपने कि वो पूछेगी श्रुति को कि परमिशन क्यों दी जब तुमसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि अनुज मुझसे बात करते हैं। तो बहुत बढ़िया है आपका रिव्यू। और इसी के इर्द गिर्द मैंने भी एक वीडियो बनाया था कि अनुपमा जो है जरूर श्रुति को कुछ ना कुछ इसका जो है जवाब देगी। जो श्रुति ने हरकत की है, साफ साफ झूठ बोला है इनफैक्ट। तो बढ़िया रिव्यू है आपका कुसुम जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून अंजू मैम, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बिनू बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद ऐसा एपिसोड देखा। आज का एपिसोड के बारे में बोलने से पहले मैं कल का एपिसोड के बारे में बोलना चाहती हूँ। कल जहाँ दीपू जी अनुपमा को बुलाते हैं मिलने के लिए और उसे जो बताते हैं कि वाइल्ड कार्ड में एंट्री मिली है उसे अनुपमा को कंपटीशन में ज्वाइन करने के लिए, तभी अनुपमा की खुशी के ठिकाने नहीं रहते हैं। वो बहुत ही खुश हो जाती है और जहाँ दीपू जी अपने मन की बात बताना चाहते हैं उन्हें वो मौका ही नहीं मिलता है। मैं तो कान्हा जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि दीपू जी को वो मौका मिले ही ना, क्योंकि वो बताने के बाद खुद दीपू जी भी पछताएंगे कि मैंने क्यों बता दिया। ये बताने के बाद अनुपमा को तो बहुत दुख होगा और दीपू जी भी पछताएंगे और पहले जैसी उनकी दोस्ती नहीं रहेगी। क्योंकि अभी जिस तरह से अनुपमा अपने हर दुख को दीपू जी से शेयर करती हैं, वो
बाद में शेयर नहीं कर पाएगी। और यहाँ तोशु के बारे में बोलना है। तोशु जिस तरह बर्ताव कर रहा है, बहुत ही नीची और गिरी सोच है उसे। खुद तो बीबी के टुकड़े पे पड़ा है, और जहाँ केंजल ने परी के भविष्य के लिए एफडी रखा है, वो भी चोरी से निकाल के लेके जाना चाहता है अपने बिजनेस के लिए, और वो ऐसा करेगा ज़रूर। केंजल और किस बात का इंतज़ार कर रही है समझ में नहीं आता, और शायद मेकर्स यही दिखाना चाहते हैं कि असल ज़िंदगी में भी बहुत सारी फीमेल्स अपने पति की बहुत सारी गलती बार बार माफ़ करती रहती हैं बच्चों के लिए। पर मेकर्स को ये भी दिखाना चाहिए कि फीमेल्स भी स्टैंड ले सकते हैं, क्योंकि तोशु तो सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है। उस जैसे इंसान से रहने से कुछ नहीं होगा। उससे अच्छा है परी के भविष्य के लिए भी और ख़ुद के फ्यूचर के लिए भी केंजल को एक स्ट्रॉन्ग फाइनल डिसीजन लेना ही चाहिए। और ये ऐसा दिखा के बहुत सारी फीमेल्स को मोटिवेशन मिलेगी कि आखिर में अगर ये सिचुएशन उनकी ज़िंदगी में भी आए तो वो भी ऐसा स्टैंड ले सकते हैं। और यहाँ वनराज को बापूजी ने बहुत अच्छी तरह समझाया, फिर भी वो अपने इरादों जो सोच के रखा है वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। जहाँ अंश को बिगाड़ने में वो कुछ भी कसर नहीं छोड़ रहा है, वो अंश को डिम्पी के खिलाफ भी भड़का सकता है। आज काव्या और बापूजी ने बहुत अच्छी तरह समझाया, पर ये इतना समझाने के बाद भी वनराज अपने गंदे इरादे को नतीजा देगा। और यहाँ पे अनुज और अनुपमा के बारे में बोलना है। अनुज और अनुपमा, जहाँ अनुपमा बहुत खुश होके हलवा केक बना रही थी डांस करते, वो अनुज छुप छुप के देखना बहुत अच्छा लगा। और वो आके उससे बात करता है, उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि अनुपमा दीपू के साथ आगे की ज़िंदगी गुजारने के लिए खुश है, और वो बात बोल भी देता है, पर वो सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर देता है। वो टॉपिक को चेंज कर देता है, और एक दूसरे को वो केक खिलाते हैं, हलवा केक। ये देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत एपिसोड के बाद ऐसा एक एपिसोड आज देखने को मिला। और यहाँ जहाँ वो वेजिटेबल्स के नेम से भी वो कॉन्वर्सेशन भी बहुत अच्छा लगा, बहुत हंसी आई। और ये सब सुन के श्रुति जल बुक के राख हो रही थी, बेड के ऊपर पड़ी, और उसे बहुत इनसिक्योरिटी फील हो रही थी। उसे ये भी याद आया कि आद्या को अनुपमा ने कैसे मैनेज किया जब भी पैनिक अटैक आया। तो वो उसको अभी बहुत इनसिक्योरिटी है कि वो आद्या और अनुज को खो देगी। इसी इनसिक्योरिटी और सिक्योरिटी में से वो जानबूझकर वो दवाई गिरा देती है। उसे बर्दाश्त नहीं होता है कि अनुपमा और अनुज इतने हंस हंस के बात कर रहे हैं। और यहाँ आद्या के बारे में बोलना है। आद्या को मैम पैनिक अटैक तो नहीं है, ये मेंटली बहुत डिस्टर्ब है।
क्योंकि जब भी वो आश्रम में थी वो एक ही प्रार्थना करती थी कि उसे भी एक फैमिली मिले। और जब भी अनुपमा और अनुज ने उसे गोद लिया तो उसने समझ लिया कि मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई। पर जब भी वो फैमिली में आई, बा ने कम उसको परेशान नहीं किया है, और ऊपर से पाकी ने, बरका ने और मालती देवी ने बहुत भड़काया। इस छोटे 8 साल की बच्ची में मन में बहुत गहरा असर कर गया। ऊपर से वो एक्सीडेंट हुआ, तभी उसे वो और ज़्यादा वो ज़ख्म भर गया। और यहाँ जहाँ वो सोचती थी कि वो बार बार इसीलिए अनुज और अनुपमा को पूछती थी कि आप मेरे को अनाथ आश्रम फिर से छोड़ के नहीं आ जाओगे क्या। और ये बात भी पूछती थी अनुपमा को कि आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना। तो अनुपमा ने भी उसे पिंकी प्रॉमिस दिया था कि वो कभी भी उसे छोड़ के नहीं जाएगी। पर उस दिन ऐसा सिचुएशन आया जिस वजह से अनुपमा ने वो स्टेप ले लिया, क्योंकि अनुपमा ने भी सपने ने भी नहीं सोचा था कि अनुज के मुंह से ये सब कुछ एक दिन उसे सुनना पड़ेगा। इसीलिए वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसने घर छोड़ के चली गई। ये घर छोड़ के जाने का टाइम जब भी आद्या को बराबर मिसकम्युनिकेशन हो गया और अनुपमा पे दुख और गुस्सा भी आया कि उसने छोटी को छोड़ के चली गई अनुपमा। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसे ही बढ़ती गई। उसे क्लियर किसी ने भी नहीं किया, थोड़ा बहुत भी अनुज ने भी बोला नहीं। अनुज भी ऐसे ही बोलता रहा कि आपकी माँ ने आपको क्यों छोड़ के चली गई वो मुझे मालूम नहीं। अनुज को तो पता था कि उस दिन आद्या को रूम को भेजने के बाद क्या क्या बातचीत हुआ, पर उसे याद क्यों नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कब याद आएगा। और इसकी वजह से आद्या अभी अनुपमा से इतनी गुस्सा है, वो थोड़ी बहुत नफ़रत में बदल गई है कि मेरी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है। और जहाँ अभी आद्या ने श्रुति को अपनी मम्मी बनाने का सोचा है, तो उसमें अभी अनुपमा बीच में आ रही है। तो उसे लग रहा है कि अनुपमा तो आद्या को छोड़ के चली गई, मम्मी तो मेरे को छोड़ के चली गई, अभी जिसे मैं मम्मी बनाना चाहती हूँ उसके भी बीच में वो आ रही है करके उसे गलत फहमी है। उसे अनुपमा से इतना गुस्सा है कि वैसे छोड़ के मेरे को अकेला छोड़ के चली कैसे गई। ये और मेकर्स ये 12 साल की बच्ची को बहुत ज़्यादा ही रूडली दिखा रहे हैं। इतना रूडनेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही एक्सट्रीम दिखा रहे हैं। अभी जहाँ आद्या को लग रहा है कि उसकी फैमिली फिर से बनते बनते टूट रही है, इसीलिए आद्या ऐसे बिहेव कर रही है। आखिर में जब भी अनुपमा संभालेगी, आद्या ही श्रुति और अनुज की शादी तोड़ने में अनुपमा का साथ देगी, क्योंकि अनुज से ज़्यादा आद्या अनुपमा को ही चाहती है। ये और क्योंकि ये ट्रॉमा है, पर पैनिक अटैक्स नहीं हैं। पैनिक अटैक में ऐसा होता है कि खुद हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और कोई चाहिए हमें संभालने के लिए, तो ऐसे धक्का देने की बात तो दूर है। ऐसा
ऐसे पैनिक अटैक्स मेरे में 2 बार आया है। एक बार तो खुद घर में कैसे भी फैमिली मेम्बर्स ने संभाल लिया, पर दूसरी बार में ऐसा हो गया कि मेरे को सांस लेने को भी तकलीफ़ हो गई और हॉस्पिटल में ऑक्सीजन देना पड़ा, तभी मैं बच गई। नहीं तो बहुत साल पहले ही मैं इस दुनिया छोड़ के जा चुकी होती। आगे जिस तरह से आद्या रिएक्ट करेगी, जैसे डायरी फाड़ के, वो सब उसके लिए इसीलिए है कि वो जहाँ वो अभी आद्या अनुज और श्रुति को शादी करवा के अपने फैमिली कंप्लीट करना चाहती है, उसे अनुपमा बीच में आ रही है, ऐसा उसे गलतफहमी हो रही है, इसीलिए वैसा कर रही है। मेरे को लग रहा है ऐसा, पर मेरे को भी आद्या पे बहुत गुस्सा आता है। सबसे ज़्यादा मेरे को गुस्सा आता है जब भी अनुपमा से वो बदतमीज़ी से बात करती है, पर ये मेकर्स की करतूत है कि इतने एक्सट्रीमली उसे दिखा रहे हैं। आगे इंटरेस्टिंग मोड है। आज के लिए इतना ही मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच राधिका जी, बढ़िया रिव्यू था। और आपने शुरू में जो कवर किया है कि फीमेल्स जो माफ करती रहती हैं बच्चों के लिए, तो अनुपमा के लिए भी दिखाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि ये अनुपमा की आगे की जर्नी है जो हम देख रहे हैं। अनुपमा ने जब वनराज को इतने सालों बाद बच्चों के लिए वो करती रही, अल्टीमेटली उसने वनराज के जुल्मों सितमों पे अंकुश लगाया, और अब भी लगाएगी, क्योंकि धारावाहिक थोड़ा लंबा चलता है तो अब भी लगाएगी। मगर रियल लाइफ में औरतें, खास करके वो औरतें जो डरती हैं, जिनके अंदर गट्स कम होते हैं, वो लगा ही नहीं पाती हैं अंकुश, क्योंकि डर इतना अंदर बैठा हुआ होता है। अनुपमा कम से कम डरती नहीं है, ये बात तो पक्की है। तो बढ़िया था आपका रिव्यू राधिका विनू जी, थैंक यू सो मच। और आपकी आवाज से थोड़ा थका थका सा महसूस हो रहा था कि शायद अब थकी हुई हैं, तो सेहत का थोड़ा ध्यान रखिए, यही कहूंगी। और बढ़िया है बाकी सब, तो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज के शो में हमने देखा कि अनुज को जो अनुपमा अपने शो के बारे में बता रही होती कि मुझे 2 बार मैं फेल हो चुकी, तीसरे बार मुझे खुशी मिली है और मैं वो खुशी नहीं खोना चाहती, और बहुत ऐसी बातें कहती। तो अनुज को बार बार दीपू के लिए लगता है, यशदीप के लिए, कि यशदीप के लिए बात कर रही है, और वो सोचने भी लगता है कि उसकी 2 शादियाँ फेल हुई है, ये सब बातें। और फिर वो कहता है कि हाँ, मैंने यशदीप की आंखों में देखा तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट, बहुत मैंने तुम्हारे लिए कहते फिक्र और ये सब देखा है मैंने, तो तुम्हें भी खुश होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, जो भी कहता है। तो अनुपमा, उसको गुस्सा आ जाता है, अनुपमा को चिढ़ जाती है, वो कहती क्या बोल रहे हो। और बताने की बात तो अपने शो के लिए बोल रही। अनुज सच में एक कहने, अनुज को ये अनुपमा वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए सिलेक्ट हो गई, उससे ज़्यादा वो यशदीप के लिए नहीं बोल रही है, बहुत ज़्यादा उसको खुशी दे गया, क्योंकि वो उसका जो चेहरा था देखने जैसा था, और एकदम खुश हो गया। उसने उसको हलवा खिला दिया, उसने भी खिलाया, अच्छा लगे ये सीन। थोड़ी सी जेलसी, थोड़ा सा नोकझोंक, ठीक है, अच्छा लगा वो। और रिलैक्स फील हुआ अनुज को कहीं ना कहीं। और फिर वो अनुपमा, फिर ये सीन दिखाते हैं कि आद्या किचन में आती है पानी पीने के लिए, और खड़े के बॉटल से पानी पी रही होती है। तो अनुपमा उसे टोकती है, समझाती है कि खड़े होके पानी नहीं पीते, और खड़े होने के पानी पीने की वजह से क्या होता है ये भी बताया, और ग्लास से पीते बैठ के पियो। और मुझे लगा कि अब ये बम फटेगा रे भाई, पर लगा कि फिर से ये कुछ ना कुछ इंसल्ट करेगी, आप अपने बच्चों क्या ख्याल रखिए, मेरी चिंता छोड़िए, ऐसा वगैरह पता नहीं क्या क्या बोलेगी ये। पर नहीं, उससे चुपचाप सुन लिया, चलो थोड़ा अच्छा लगा, सुन लिया, बैठ के पानी पिया। फिर अनुपमा ने वही पहले वाले स्टाइल में ही कहा कि ये खाना अभी बहुत सारा बन गया, क्या करूँ, मैं आके देखती हूँ इसका क्या करना है, और वेस्ट जाएगा, ये वो जो बोलती है।
तो वो मुझे आ गई वो बात, जब बचपन में भी ये ऐसे ही रूठ गई थी। वो किसी फ्रेंड को उसने गुली किया था और अनुपमा ने डांट दिया था, तो गुस्सा हो गई थी वो अपनी मम्मी से छोटी। तब उसने देविका का सहारा लेके ने झूठ मूठ का फ़ोन कॉल पे करके उसको मनाया था। तो उसने उस बात को समझा भी था। तो यहाँ सेम मुझे देविका की याद आ गई। अच्छा लगा, उसने खाना भी खाया, टेस्ट भी किया, छुपके किया। अनुपमा भी देख रही है और अनुपमा के एक और मन में इच्छा जाग गई भाई कि मुझे अपने हाथ से अपनी बेटी को खाना खिलाना। तो ये दिन भी ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। रही बात यहाँ पे अनुज और अनुपमा, यानी वो श्रुति के रूम में अनुज को दिखाते हैं कि वो कुछ बुक्स पढ़ के सुना रहा है, कुछ कहानी है, कुछ बताए स्टोरी। तो अनुपमा वहाँ जाती है और दवाई लेके पहले देख लेती है इन दोनों को। तो फिर वो वहाँ से जाना अच्छा समझती है कि मैं यहाँ क्यों डिस्टर्ब करी, तो जाना चाहती। पर श्रुति देख लेती है और श्रुति कहती कि रुको अनुपमा, और तुम्हारा वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गया है शो में, तो अच्छा लगा सुन के, कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहती है। तो वो कहती थैंक यू, बट वो दवाई और उसके लिए बात देती है और कहती कि तो यहाँ अनुज को दूध पिलाते देख तो अनुपमा को बुरा लगना है, डेफिनेटली लगेगा ही, क्योंकि प्यार जो करते हैं यार, ऐसा तो होता ही है। और फिर उसके बाद श्रुति वहाँ से, फिर अनुपमा वहाँ चली जाती है और अपने रूम में वो प्रैक्टिस कर रही होती है इंग्लिश में वेजिटेबल के नाम से और ये सब। तो उसको बड़ा पेचीदा लगता है और अपने आप में बड़बड़ाती भी है कि कैसे नाम है ये, लेना मुश्किल है, मैं कैसे करूँगी, और इससे अच्छे तो हिंदी है, ब्रिंजल बोलते तो क्या बुरा होता है, ये सब वो कह रही। तो अनुज वहाँ से गुजर रहा था, अनुज ने सुन लिया। अनुज आता है और उसको बताता है। फिर दोनों ही उन वेजिटेबल को लेके बातें करते हैं, बहुत कठिन नाम होते हैं। फिर अनुपमा कुछ और ही मतलब निकालती है, जिससे वो कि नॉनवेज भी बोल देती है। तो वो दोनों खिलखिला के हंसना, बहुत अच्छा लगा वो मोमेंट, वो बहुत अच्छा लगा सीन की दोनों शायद 5 साल बाद ये पहली बार दोनों ही खुल के हंस रहे थे एक दूसरे के साथ। मैं थू थू करने वाली थी, पर क्या श्रुति की नज़र लग गई, श्रुति को भी आवाज़ आ गई इनके हंसने की, तो श्रुति ने नज़र लगाई दी। तो श्रुति ने अपने गलत हरकतों से वो दवाई फेंक देने से फेंक कर और उसको लाए। इसके लिए बहुत ना मामूली बात है दवाई का फेंक देना, क्योंकि अनुज कपाड़िया उसके साथ है। पर यहाँ कितने लोगों को दवाई नसीब नहीं होती है, ये बात आज गलत हरकतें की इसने, गलत हरकतें की। और कहा कि पैर का धक्का लग गया इसलिए गिर गई। और फिर बाद में वो इमोशनली नाटक उसके अनुज के साथ कि यही रुको, मेरे पास रुको। अनुपमा को अच्छा नहीं लगता है। अनुपमा फिर दवाई उठाने लगती है, कहती किसी को काज चुभ जाएंगे। ये बात है ना, ये फ़र्क है श्रुति तुम में और अनुपमा में, कि तुम किसी के रास्ते में काज बिछाती हो और वो उनको साफ करने वालों में से है। तो यहाँ ये फ़र्क श्रुति और अनुपमा में दिखता है। और ये फ़र्क बहुत जल्दी मुझे लगता है अनुज को भी समझ में आएगा। अनुपमा को समझ में आ गया कि श्रुति क्या चल रही है, गेम ये गलत कर रही है। उसने नर से भी पूछा और बहुत अच्छी बात की, उसने नोटिस किया इन तीनों में, जहाँ की आद्या भी कर सकती थी पर नहीं, यहाँ अनुज भी कर सकता था बाद में पर नहीं, पर यह श्रुति तो कहने भी चाहिए था, क्योंकि भाई उसको वो गिर चुकी थी और उसने आवाज़ दी थी, बता के जाना चाहिए था। आज अनुपमा ने ये नोटिस किया कि कभी बाहर जाओ तो बता के जाना अनुज सर को या मुझे। तो वो कहती है ठीक है। और उससे ये भी कहा कि मैंने ये रखा ही नहीं था वहाँ पे, पैर के पास तो बिल्कुल ही रखा था, मुझे याद है। अनुपमा समझ गई, अनुपमा के हाथ पे खून भी लग गया। अनुपमा ज़रूर इसका जवाब देगी श्रुति को, पहले तो प्यार से समझाएगी, अभी वो कह नहीं रही है पर कहेगी, ज़रूर कहेगी, वो प्यार से समझाएगी भी। उसके बाद इधर वनराज शाह का बताते हैं। तो वनराज शाह का बताते, वनराज शाह जैसे बच्चा वो अंश गलत करा बच्चों के, उनके दोनों के ईशानी और माई के खिलौने तोड़ देता है, गुड़िया तोड़ देता है। तो पाखी और तो सॉरी पाखी ने क्या नाम है इसका, काव्या और डिम्बी समझाती उसे पर डांटती भी। तो वो वहाँ पे आके वनराज बीच बचाव करके अंश को वहाँ से ले जाता है कि कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई नहीं डांटेगा। तो फिर वो कहता है पापा भी नहीं डांटेंगे। क्या एक कान भरने वाला काम, बच्चे को गलत सिखाने वाला काम वनराज कर रहा है। बापूजी सही समय पे आते हैं और उसने अंश को अच्छे से समझाया उन्होंने कि बेटा ऐसा नहीं है, वो पापा है तुम्हारे और तुम बीच में, और वो तुम्हारे को सही और गलत पापा बताएंगे। पापा ने अगर डांट भी दिया, एक थप्पड़ भी लगाती तो कोई नहीं, उन्होंने अपना भी समय बताया कि मैंने तेरे और तेरे बच्चे के बीच में कभी नहीं आया, दादा है तो दादा जैसे रहे। पर वनराज तो कुछ और ही चल रहा है कि शादी होगी तब ना, पापा बनेगा तब ना। तो यहाँ ड्रामा तो है।
बट यहाँ अनुपमा का जो रिकेप में हम लोग दिखाते हैं कि आद्या यानी सुन दोनों क्यों बातें करते सुन लेती है, तो वो डायरी भी पढ़ती है और उसको फीवर भी आ जाता है। यहाँ दिया का भी बताया कि वो अनुपमा को बताती है कि एक तरफा शादी, एक तरफा प्यार नहीं चला, तो तब भी तो यहाँ अनुपमा डेफिनेटली अभी श्रुति का भी धीरे धीरे, एक ही बार में तो श्रुति का नहीं आएगा ना, वो और कुछ और भी करेगी, कुछ और ऐसी अनुज को पास में रखने की, ये करने की। यहाँ अनुज के पे मन पड़ना जानती है अनुपमा की। अनुज ने वैसे भी पहले बता दिया कि मैं प्यार नहीं करता हूँ, छोटे के लिए अपने बच्चे के लिए कुछ भी करूँगा। तो यहाँ अनुपमा श्रुति को तो अपने तरीके से समझाएगी, पर यहाँ वो अनुज को भी कहेगी कि तुम छोटी के लिए शादी करने वाले हो, तो क्या सच में छोटी इससे खुश रहेगी? या तो तुम पूरे तरह से मूव ऑन हो जाओ, या तो पूरी तरह से श्रुति को अपना लो। शादी तब करो जब श्रुति को अपनाना चाहोगे, पूरी तरह से अपना लोगे तब, नहीं तो छोटी के साथ फिर भी ऐसे ही होगा। क्योंकि वो जैसे जैसे अभी उसकी नफरत तो कम होगी, तो डेफिनेटली माँ के लिए मिलना होगा, माँ से मिलेगी, तो श्रुति कैसे बर्दाश्त करेगी? क्योंकि ये सब वो, और ये अपना अनुभव ही बताएगी उसको कि वनराज और काव्या की शादी के बाद क्या हुआ था। यही तो सब होता था। काव्या चिढ़ जाती थी, अनुपमा समझाने की कोशिश करती थी पर वो नहीं करती थी, पर आखिर क्या हुआ था कि उनकी शादी भी तो नहीं चली, दोनों तरफ प्यार था फिर भी नहीं चली, क्योंकि शक की वजह से काव्या ने कुछ ऐसी गलतियां कर दी जो वनराज के मन में नफरत घर कर गई, और वो आज भी उस बातों को भूला नहीं था। एक समय फिर याद रखता था, अच्छा, फिर एक समय फिर भूल जाता था, बार बार वही गलतियां की थी काव्या ने भी अपने उस समय पहले शुरुआत में। तो यहाँ वही बोलेगी कि अब ये बच्चों पे असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अद्या अपने यानी तुम दोनों को यानी माँ को लेके अनसिक्योर है। कल वो यही सब होगा तो यहाँ अनुज को भी समझ में आएगा, या फिर कभी श्रुति को समझ में आए कैसे। तो यहाँ अगर ज़बरदस्ती शादी है, क्या है कि अनुज अभी गिव अप तो नहीं करेगा इतने जल्दी, क्योंकि वो श्रुति के एहसानों तले दबा है, और आध्या जब तक हाँ नहीं बोलती वो भी है। पर एक वो भी हो सकता है, ये भी है कि या तो अनुपमा शादी रोकेगी, या फिर खुद श्रुति गिव अप कर ले ये सब जान के, या फिर आध्या भी कर सकती है आगे चल के। पर यहाँ दोनों से कम लगती है उम्मीद। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे अनुपमा को अभी, अनुज को अभी श्रुति को आध्या को समझाते हुए देखा, तो कल वो श्रुति की बात भी समझेगा। ये ऐसा है, बार बार इस टाइप की हरकतें करना वो नहीं चाह रहा है, फिर भी तो उसको लगेगा, तो वो उसको बोलेगा कि भाई तुमको विश्वास होना चाहिए। क्योंकि सेम माया वाला ट्रैक में अनुपमा ऐसी नहीं है ना, अनुपमा तो कभी जलसी करती नहीं। तो यहाँ उसको लगेगा कि मैं माया के साथ गया रहा, तब भी अनुपमा ने कभी मुझ पर शक नहीं किया, और श्रुति ऐसा सब कर रही है तो ये शादी कैसे चलेगी। तो उसको भी शायद ये बात समझ में आएगी, ऐसा कुछ हो सकता है आने वाले वक्त में। और बाकी का तो सब अभी देखते हैं क्या होता है आगे। और जो इधर जो है ना कहते शायद हो सकता है कि ये जो कंपटीशन अनुपमा, तो यहाँ जैसे अभी सब लोग लाइव में भी कह रहे थे कि बैंगन का ढोकला ये सब है, तो ये एक बार अनुज ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैंने कुछ तो भी उसकी स्टफिंग की है, ऐसा कुछ तो भी नहीं, तड़का मारा है उसमें। बैंगन का ढोकला अनुपमा बनाती है और अनुज तड़का मारता है, तो शायद वो घर में बना के देखते हैं, कुछ ऐसा लगा है मुझे वो कि वो सब तब मैंने भी कहा था, तो सब सुना था बहुत पहले। तो ये हो सकता है। अनुपमा का एक फोटो भी अपलोड हुआ, अनुपमा अनुज साथ में, ट्रॉफी अनुपमा के हाथ में ब्लू सी ऐसे ग्रीनिश, ऐसी ब्लू ग्रीनिश कलर की साड़ी पहनी होती है, और अनुज पिंक कलर का जैकेट पहना होता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजी, थैंक यू सो मच वर्षा रिव्यू के लिए। और सही कहा आपने अपने रिव्यू के एंड में कि श्रुति के साथ तो बात करेगी, मगर अनुज से भी अनुपमा बात करेगी, बल्कि सवाल उठाएगी कि अनुज क्या कर रहा है, कि अगर आध्या के लिए वो श्रुति को इस तरह से अपने घर पे रख के या अपने साथ शादी कर रहा है, श्रुति के साथ जो भी उसका रिलेशन बना रहा है, या तो उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करे, नहीं तो ये आध्या के लिए ठीक नहीं है। आधा अनुज इधर आधा अनुज उधर। अगर आध्या के लिए कुर्बानी ही करनी है तो पूरी तरह से दिल से करे, जैसे कि अनुपमा ने की थी। छोड़ा था तो छोड़ा था। तो मुझे लगता है दोनों को समझाएगी। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। तो थैंक यू सो मच आपकी इस रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। रानी महेंद्र जी ने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच, और इतना इनकरेज करने के लिए भी। और अंजू जी आपको भी थैंक यू सो मच। आपको ये रिश्ता क्या कहलाते का रिव्यू ऑडियो पसंद आया,
और कल के आपके रिव्यू देखें। अनुपमा की मदद से बापूजी करेंगे वनराज की ये बड़ी चाल एक्सपोज। चोर तोशु को जेल से बचाने वाली गलती का खामियाजा अब भुगतेगी किंजल। किंजल और तोशु को देखकर एक ही ख्याल आता है, और करो लव मैरिज। तोशु, तुम जैसा चोर आदमी चोरी कर सकता है, माँ पे इल्जाम लगा सकता है, वो बेटी का पैसा कौन सा छोड़ेगा। किंजल अच्छी है, तोशु पर ट्रस्ट करना बेकार है। वनराज का कार्बन कॉपी है तोशु। किंजल तोशु के साथ रह ही क्यों रही है। और तीसरा, दिया सुलझाएगी अनुपमा की सबसे बड़ी गुत्थी, दिखाएगी उसको सही राह। दिया एक अच्छी दोस्त है और वो सही है, उसने वही बोला। दिया ने खुद अपनी बेटी खोई है, तो दिया जानती है एक बच्चे को क्या फील होता है, और दिया को पता है अनु सिर्फ अनुज और आद्या से प्यार करती है। सब श्रुति की तरह सेल्फिश नहीं होते। दिया सच में बहुत पॉजिटिव है। आज का एपिसोड, हाँ अनु, तुम्हें भी जीने का और खुश रहने का हक है। जिंदगी अच्छे लोगों के साथ कान्हा जी कभी बुरा नहीं करते। अनुज के हिसाब से सोचे तो अनुपमा तुम फेल हुई हो। वो दोनों वनराज और अनुज फेल हुए हैं। तुमने हर एक रिश्ते में 100% दिए हैं, वो दोनों ही नहीं दे पाए। इन दोनों की बदकिस्मती है, तुम्हारी नहीं। अनुज जो सोच रहा था वो खुद की गलती भी याद कर लेते। अनुज, अरे सो जेलस, अच्छा है, जेलेसी अच्छी है। सच्ची अनु के भोलू राम ही अच्छा है। और हो अनु की बातें सुनकर सिर्फ आंसू नहीं, हार्ट अटैक भी आ सकता था। जब अनु ने अनुज को वही फुल स्टॉप लगा दिया और कहा, आप ये क्या बोल रहे हैं। अनुपमा तो सिर्फ अनुज की ही है और हमेशा रहेगी। अनुज कपाड़िया, आप हमेशा ही कंफ्यूज में क्यों रहते हैं। बैड, वेरी बैड। जैसे ही अनु ने कहा कि वो मास्टर शेफ कुकिंग कंपटीशन में वाइल्ड कार्ड एंट्री की बात कर रही है, तब अनुज केक अनु को अपने हाथों से खिलाए। और खुशी इस बात की थी दीपू जी के साथ कुछ नहीं है, तीसरा मौका नहीं। इमीडिएटली केक खिला दिया। ये तो बात है। उसके बाद उनके चेहरे की हंसी तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कोहिनूर का हीरा मिल गया हो। कभी अनु थी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। छोटी अनु के आने के बाद वो प्रायोरिटी हो गई। फिर क्यों अनुपमा से अपने बच्चों को पीछे रखने को सोचा जाता है। हाँ अनु, तुम ही कंपटीशन में जरूर जीतोगी। अनुज फ्लैशबैक में चला गया। बेचारे का चेहरा उतर गया। दीपू का नाम लेते हुए इतना गुस्सा, इश्क मोहब्बत, इतने गुस्से से कौन बोलता है। भोलूराम कपाड़िया जी अनु का हक करना चाहते थे। कपाड़िया जी अनु को हक करना चाहते थे। कपाड़िया जी आप भी कमाल हो। अनु ने क्लियर कर दिया कि यशदीप जी सिर्फ बॉस और मेरे अच्छे दोस्त थे और कुछ भी नहीं। ही इज हैप्पी। अनु ने अनुज को एक हक से डांटा और डांट लगानी चाहिए थी। हाँ अनु, आद्या और श्रुति को तुम ही संभालो। अंश ने माही ईशानी के खिलौने तोड़ दिया। काव्या और डिम्पी ने सही बात ही सिखाई है। वनराज अपने बेटे और बेटी को तो आज तक समझ नहीं पाए और अंश पे अपना अधिकार जमाए बैठा है। चलो, छोटी ने फर्स्ट टाइम अनु की बात सुनी और मानी। मुझे अब भी समझ में नहीं आता है कि अचानक से आद्या ट्रिगर कैसे हो जाती है और बदतमीजी करती है, जबकि ये बातें अच्छे से सुनती है अनुज और अनुपमा दोनों की। वाह अनु, क्या दिमाग चलाया है। छोटी को पता भी ना चले और वो खाना भी खा ले। अनु छुपकर आद्या को देख रही है खाना खाते हुए। ऐसे ही कहा, माँ तो बेटी के दिल तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन बस माँ के हाथ का खाना
बेटी के पेट तक पहुंच जाए। छोटी को खाना बहुत पसंद आया। अनु ने नजर उतारी। थू थू थू, क्यों आद्या अपनी माँ के हाथ के खाने का स्वाद भूल गई गई थी क्या? वो दिन भी आएगा अनु, जब तुम अपनी बेटी को अपने हाथों से खिलाओगी। अनु दवा और हल्दी वाला दूध लेकर आ गई। श्रुति ने मास्टर शेफ में वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए कांग्रेचुलेशन कहा। श्रुति, तुम अनुज को जलाना चाहती थी। अनु को अपने पास खड़ा रखकर शादी के जलाना अनु को पास खड़ा रख के जलाना चाहती। शादी के बाद भी तुम इनसिक्योर ही फील करोगी। आज भी अनुज शादी के नाम से अनकंफर्टेबल फील करता है। इसका शादी पुराण खत्म ही नहीं होता तो इसको मौत के बेड पे सुहागरात मनानी है। सॉरी, आद्या को किसी ने तो कुछ गलत पट्टी पढ़ाई है। वो बातें सुनती है फिर अचानक ट्रिगर हो जाती है। आज सच्ची कितना अच्छा लगा, कितना सुकून मिला जब आद्या ने चोरी चोरी अनु के हाथ का खाना खाया। अनु को भी कितना सुकून मिला होगा यार। आई विश ये मम्मी और बेबली का पैचअप जल्दी हो जाए। हाय, आज कितना अच्छा सीन था मान और अनु आद्या के, लेकिन वो श्रुति नागिन के सीन आ गए बीच में। चुड़ैल कहीं की लीच की तरह चिपक रही है अनुज से। लिप के बाद पहली बार दोनों इतना खुश थे। अनुज की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। इस श्रुति को जलन होने लगी। बस नजर लग गई हमारे मान को। चलो कोई नहीं, नेचुरल है। वाह, कितना अच्छा एपिसोड था। सबसे ज्यादा मान सीन, सो ब्यूटीफुल मान मोमेंट। अब इस शो से पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। इन दोनों की केमिस्ट्री को इंडस्ट्रीज की सबसे बेस्ट केमिस्ट्री है। सही बात है भाई, एक ही सब्जी के इतने सारे नाम होते, क्या क्या याद रखे। आज अनुज ने अनु को इंग्लिश सब्जी के हिंदी गुजराती नाम बताए। ये सीन भी बहुत अच्छा था। अनु ने कहा, खाने में सलमान खान का क्या काम। तब अनुज ने सल्लू भाई की एक्टिंग की। वाह कपाड़े अजय। ये सीन देखकर मुझे वो मंदिर की सीढ़ी पर बैठे तब भी अनुज ने सलमान खान की मेमोरी की थी और अनु को हंसाया था मिमिक्री करके, जब उसने शादी पे सारी बातें कही थी अनुज ने। जब अनु ने पूछा था आपने शादी क्यों नहीं की, वो सीन याद आ गया। श्रुति की ड्रामेबाजी अनुज के साथ खून की तरह चिपक के उसका खून पी रही है। इतना खुलकर तो अनुज और अनुपमा पहली बार हंसे। 5 साल बाद अनुज हेल्प अनु टू लर्न इंग्लिश वेजिटेबल्स। मान, अरे वेरी हैप्पी विथ यू टुगेदर। श्रुति फील्स जेलस। अब पता चला आद्या हरकतें कहाँ से सीख रही है। अनुज को खुश भी नहीं देख सकती, बस अनुज को पाना चाहती है। आज का रिव्यू। जल कुकड़ी श्रुति की इस हरकत का अपने हिसाब से देगी अनुपमा जवाब। लो, नर्स ने भी बता दिया कि मैंने दवाई का बॉक्स टेबल पर रखा था। अनु सब कुछ समझ गई। माया के मरने से पहले अनु ने यही सारी बातें माया को समझाई थी। वो समझ भी गई और सुधर भी गई, लेकिन श्रुति समझेगी या नहीं ये नहीं पता। अनुज की खुशी से इतनी जलन और प्यार का दावा करती है। ये प्यार नहीं है, जुनून है कि मुझे चाहिए तो बस चाहिए। अगर अनुज से प्यार करती है तो इतना तो समझना चाहिए कि वो इतने सालों बाद खुश है तो उसकी खुशी अनुपमा के साथ है। मान तो मिलकर ही रहेंगे। तुम्हारे जैसे कई आए और कई चले गए, ये गए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। श्रुति तुम क्या चीज हो। इतना खुलकर पहली बार हंसे अनुज और अनु, और श्रुति चिढ़ गई। अनुज सिर्फ अनुपमा के साथ खुश है, इसको सिर्फ अपनी खुशी की पड़ी है, लेकिन उसे एहसास भी है कि इस वक्त अनुपमा की सख्त जरूरत है। अच्छा लगा, तभी तो गुस्से पे कंट्रोल कर लिया और फौरन झूठ भी बोल दिया कि नींद में पैर लग गया और सपना देखा। लेकिन झूठ तो झूठ होता है। नर्स ने भी सच बोल ही दिया।
आज काव्या की बात कही, आज काव्या ने क्या बात कही है कि सौतेला बाप तुम्हारे जैसा नहीं होता है। वेल डन काव्या। किस बच्चे पे अधिकार जता रहा है वनराज, जिसके बाप को बचपन से बड़े होने तक सिर्फ ताने मारे हैं वनराज ने, फिर भी नहीं सुधरा और ना सुधरेगा। लेकिन आज बापूजी ने भी अच्छा लेसन दिया, लेकिन ये कुत्ते की दूं में नहीं सुधरेगा, अपने मन की ही करेगा। आई विश कि अनुपमा और छोटी के बीच सब ठीक हो जाए, जल्दी जल्दी और जलो। रियलाइज करो कि तुम्हारे साथ अनुज कभी खुलकर हंसा ही नहीं। कपाड़िया जी जेलस हो गए। क्यूट एक्सप्रेशन। पुराने मान मिलने की होप है अब। दोनों के दोनों प्रेमी पागल हैं। जब अनुज को पता चला कि दीपू और अनुपमा के बीच कुछ नहीं है, तो अनुज की तो लॉटरी खुल गई है। और सही कहा, माया को जिस तरीके से अनुपमा ने समझाया था वैसे ही अब श्रुति को समझाएगी। और ये न्यूज़ बिल्कुल सही है कि अनुपमा बीजेपी में ज्वाइन हो गई है, लेकिन सीरियल तो नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसी के ऊपर है। लेकिन सच में आज सबसे बेस्ट सीन अनुज और अनुपमा वाला था, जो खुलकर इतने सालों बाद दोनों हंसे। बहुत क्यूट लग रहे थे दोनों। और आद्या और अनु वाला सीन भी बहुत अच्छा था। उसे अपनी माँ के हाथ का खाना तो पसंद आया। अब देखते हैं आगे सीरियल में क्या दिखाते हैं, लेकिन अब आगे बहुत मजा आने वाला है इस सीरियल में। और अंजू जी, आपको अगर ये रिश्ता में कभी कोई भी बात अगर आप पूछना चाहे तो आप पूछ सकती है, मैं ज़रूर बताऊंगी। और खुशी हुई कि आपको इतनी खुशी हुई मेरे ऑडियो भेजने से, थैंक यू। और मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगा उन सबको भी थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय अंजू जी। मुझे लगा है आद्या ने आधा अधूरा सच देखा है कि वो डायरी उसके पापा ने दी, इसलिए उसने शायद फाड़ी है। अब देखते हैं, पूरा एपिसोड आ ही जाएगा कल परसों। बाय अंजू जी। परफेक्ट फैमिली, मान फैमिली। बाय सबको एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच ख्याति जी, बढ़िया रिव्यू था। और आपका रिव्यू क्योंकि लास्ट में है और मैंने सबके रिव्यू सुने हैं, और एक चीज जो आपके रिव्यू में है वो कुछ लोगों के औरों के भी रिव्यू में है। और मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि जब अनुज जैसा करैक्टर जो धारावाहिक के अंदर है और अनुपमा से इतना प्यार करता है, जब वो ये सोच सकता है कि अनुपमा तीसरी बार शादी करने जा रही है, पहले उसको वनराज का फ्लैशबैक आता है, फिर अपना आता है, फिर वो सोचता है कि अब वो दीपू से अपनी लाइफ सेटल करना चाहती है, तो ऑडियंस तो सोच ही सकती है। तो जो इतनी देर से हम सब सुन रहे थे और हम डिनाई कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। दीपू से अनुपमा कभी भी शादी नहीं करेगी। मगर जब सीरियल के अंदर के कैरेक्टर ऐसा सोच सकते हैं, ऑडियंस तो ऑडियंस है। तो मजा आया आपका रिव्यू सुन के, और बाकी सबका भी रिव्यू सुन के बहुत अच्छा लगा। तो ये था दोस्तों आज का रिव्यू सेक्शन एचएस कम्युनिटी का। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके। और आप भी अगर भेजना चाहते हैं अपना रिव्यू तो भेजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा की एचएस कम्युनिटी की आवाज का। मगर उससे पहले एचएस कम्युनिटी के मेंबर बनना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.